A very good morning, good afternoon, and good evening to all my dear students. Today we are here to discuss about the Coulomb's law in vector form. In last video we have discussed the Coulomb's law, in which we have calculated the force of attraction or repulsion between two charges, and the equation was F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. Today we are going to represent this equation in the form of vector. To represent Coulomb's law in vector form, first let we have assumed a reference point O. From this reference point O, at position vector R1 we have the first charge Q1, and from the same reference point O, at position vector R2 we have the second charge Q2. The force acting on the charge Q2 due to Q1 is F21. F21 means force on second charge due to first, and the force on charge Q1 due to Q2 is F12, which is the force on first charge due to second. If we are going to calculate the force F21, means the force on the second charge due to first, it means we are trying to get the displacement vector R12. Now, to represent the Coulomb's law in vector form, F21, we are going to calculate the force F21. F21 means the force on second charge due to first, which is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 vector का whole square into R12 cap, where R12 is what? R12 is the unit vector which shows the direction of force F21. We know that हम जानते हैं क्या, any vector A is represented by its magnitude and its direction. Vector A is equals to mod of vector A and A cap, where A cap is the unit vector which gives the direction of vector A. In the same way, we may write R12 vector is equals to R12 vector का mod which gives its magnitude and R12 cap. Now from this equation we are going to get the value of R12 cap. What will get? We'll get R12 cap is equals to, this term will comes down, we'll get R12 vector upon mod of R12 vector. Now we are going to place the value of R12 cap in the above equation, in this equation. In this equation, what we'll get? We'll get the force F21 is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 vector mod square into the value of R12 cap is R12 vector upon R12 वेक्टर का मॉड. अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, तो 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा. तो फाइनल टर्म क्या बन के आएगा? F21 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का होल क्यूब इंटू R12 वेक्टर.
This is the Coulomb's law in vector form. In the same way, we may write F12 which is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R. देखिए जब फोर्स F21 था तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 था. इट मीन्स वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम चार्ज Q1 to Q2. Now if we are going to calculate this force F12, force on first charge due to second, it means we are shifting from second charge to first. So the position vector is going to be changed by R21 whole cube into R21 vector. In this way we can get the Coulomb's law in vector form. ठीक है, तो देखिए बहुत ही बेसिक्स हैं. निश्चिंत होकर के बिना डरे हुए इन चीज़ों को आपको समझना है. अगर आपको किसी भी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो बेसिक्स आप समझ लीजिए. एक रेफरेंस पॉइंट लीजिए, रेफरेंस पॉइंट से Q1 और Q2 दोनों का पोजीशन वेक्टर लीजिए, फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालिए. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं ये हम आप 11th में मोशन इन प्लेन नाम के चैप्टर में पढ़ चुके हैं. हाउ टू गेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये बेसिक्स हैं लॉज ऑफ वेक्टर के. ठीक है, वहाँ से हमने कैलकुलेट किया था. तो हमें R12 कैसे मिलेगा ये हम जानते हैं. तो फिर बेसिक्स हैं, फिर उसके बाद हम आप वैल्यूज प्लेस कर देंगे और हमें आपको इस तरीके से कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा और ये हमारी आपकी फाइनल इक्वेशंस हो जाएंगी. आप जब यहाँ क्यूब होगा, एक छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे, जब यहाँ पर क्यूब होगा Q1 Q2 के नीचे का टर्म में पावर 3 होगी तो यहाँ पर वेक्टर होगा, और जब यहाँ पावर 2 होगी तो यहाँ कैप होगा. इसका ध्यान रखेंगे. इतना ही है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. इस तरीके से हम आप कूलम्स लॉ को इन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, इसको मैं रब करूं उसके पहले आप स्क्रीनशॉट फिर से ले लेंगे. ठीक है, तो अब हम आप जो डिस्कस करेंगे वो होगा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, द कूलम्बियन फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस. हमारा आपका जो अगला टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस. फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस. देखिए जब हम आप फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस निकालेंगे तो सबसे पहले हम आप क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को अज्यूम करेंगे. ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है O. इतनी बात समझ में आ गई. मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट O से R1 पोजीशन वेक्टर पर कोई चार्ज है Q1, रेफरेंस पॉइंट O से R1 पोजीशन वेक्टर पर कोई चार्ज है Q1. ऐसे ही R2 पोजीशन वेक्टर पर कोई दूसरा चार्ज है Q2. ऐसे ही R3 पोजीशन वेक्टर पर कोई चार्ज है Q3. ऐसे ही ढेर सारे चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस. Rn पोजीशन वेक्टर पर कोई चार्ज है Qn. और हमें क्या करना है, इन सारे चार्जेस की वजह से Q1, Q3, Q4 एंड Qn अप टू सो ऑन, Qn चार्जेस की वजह से Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है हमें क्या करना है, यही कैलकुलेट करना है. फोर्स कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमें क्या चाहिए, Q1 से Q2 के बीच का डिस्टेंस चाहिए, Q1 से Q3 के बीच का डिस्टेंस चाहिए, Q1 से Q4 के बीच का डिस्टेंस चाहिए और ऐसे ही Q1 से Qn के बीच का डिस्टेंस चाहिए. तो कैसे मिलेगा, फिर से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से. ठीक है, देखिए फोर्स कौन सा मिलेगा,
1 2 force on first charge ड्यू टू सेकेंड, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा R21। ऐसे ही फोर्स कौन सा मिलेगा F13, कौन सा फोर्स मिलेगा F13, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, वी आर मूविंग फ्रॉम विच टू विच, फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी R31 and so on. In the same way we will get the Rn1 vector. ठीक है, तो नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखिए एक बात मिस हो गई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने आपने डिस्कस नहीं किया, लेकिन अभी इसके बाद हम आप डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट चार्ज, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट चार्ज is equal to the sum of individual forces. The total force acting on the charge Q1 is equals to the sum of all the forces acting on the charge Q1 due to Q2, Q3, Q4 and Q1. This is the principle of superposition. Now we are going to place the values. What is the value of F12? K Q1 Q2 upon R21 वेक्टर का होल स्क्वायर R21 कैप प्लस F13 K Q1 Q3 अपॉन R31 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R31 कैप प्लस डॉट 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 K Q1 Qn अपॉन Rn1 वेक्टर का होल स्क्वायर Rn1 कैप। अगर आप पूरे इस क्वेश्चन में देखें तो K Q1 कॉमन है, K Q1 क्या है कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, K Q1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा Q2 अपॉन R21 वेक्टर मॉड में स्क्वायर R21 कैप प्लस Q3 अपॉन R31 प्लस डॉट 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 Qn अपॉन ये क्या है, दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, Q3, Q4, Q5 एंड सो ऑन। दिस इज द फोर्स ऑन सिंगल चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहां से डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है किसी भी चार्ज पर, ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रिंसिपल हर जगह एप्लीकेबल है, किसी भी चार्ज पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स, किसी भी चार्ज पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स हमेशा बराबर होता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज इंडिविजुअली। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज फर्स्ट is always equals to the sum of all the forces acting on the first charge individually. ठीक है,
जनरली स्टेटमेंट आप कह सकते हैं कि द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। देखिए ये तो फोर्स के टर्म में है। ऐसे ही जब आपने 11th में, अगर आपको याद हो, आपने एक चैप्टर पढ़ा था वेव्स, तो वेव्स में भी आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट के समय पे कि द टोटल डिस्प्लेसमेंट, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव एट एनी टाइम t इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट डन बाय द वेव्स इंडिविजुअली। ठीक है, तो वहां डिस्प्लेसमेंट के टर्म में पढ़े थे हम आप सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल, और यहाँ फोर्स के टर्म में पढ़ रहे हैं। बस इतना सा डिफरेंस है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सिर्फ इतना सा मतलब है कि कोई भी क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पर जो टोटल होगी वो उस क्वांटिटी पर लगने वाले सारी क्वांटिटीज के इंडिविजुअल के सम के बराबर होगी। द टोटल फोर्स एक्टिंग, द रिजल्टेंट फोर्स, सॉरी, the resultant force acting on any body is always equals to the sum of all the forces acting on that body individually। ठीक है, तो ये हमारा आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो गया एंड फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस हो गया। ठीक है, आइए कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हम आप बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम आप जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पूरे चैप्टर के लिए चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? देखिए इसको हम आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मान लेते हैं कि एक क्लास है, आप उस क्लास के स्टूडेंट्स हो और उस क्लास में आपका एक टीचर है। तो उस टीचर की परमिशन के बिना ना तो कोई बच्चा अंदर आ सकता है और ना ही कोई बच्चा बाहर जा सकता है। बट सामने वाले कॉरिडोर में, जो क्लास के बाहर का कॉरिडोर है, उसमें दूसरी क्लास के बहुत सारे बच्चे टहलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। उन पर आपकी क्लास में जो टीचर है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आपके टीचर का इफेक्ट कितनी दूरी में है? जितनी दूरी में आपकी क्लास है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि साहब क्लासरूम क्या है, डिफाइन करिए, तो आप कह सकते हो किसी भी टीचर के चारों तरफ का वह एरिया जिसमें उसका इफेक्ट है, प्रभाव है, उसे क्या कहेंगे? क्लासरूम। द एरिया around the teacher within which its influence can be experienced is called classroom। अब यही डेफिनेशन हमने चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़नी है। बस रिप्लेस क्या करना है, अब आप टीचर कोई जगह या टीचर को ही एक चार्ज मान लीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं अपने पास एक चार्ज है Q। अपने पास क्या है? एक चार्ज Q। किसी चार्ज के चारों तरफ का, किसी चार्ज के चारों तरफ का वह एरिया जिसमें उसका प्रभाव हो, इफेक्ट हो, उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। द एरिया अराउंड द चार्ज विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। किसी चार्ज के चारों तरफ का वह एरिया जिसमें क्या हो? इस चार्ज का प्रभाव हो, उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब प्रभाव समझ में कैसे आएगा? मान लेते हैं अपने पास एक टेस्ट चार्ज है Q0। मान लेते हैं अपने पास एक टेस्ट चार्ज है Q0 और ये टेस्ट चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री करना चाहता है, और इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी? E। तो अगर ये चार्ज, ये टेस्ट चार्ज इस फील्ड में आएगा तो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स कितना होगा? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज F इज इक्वल्स टू Q0 इंटू E।
if any test charge wants to enter in the field of charge q, then the force experienced by the test charge q naught is always equals to F is equals to q naught into E, where q naught is the magnitude of test charge and E is the intensity of electric field produced by charge q. तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी क्या गेट कर सकते हैं, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट. E is equals to what? F upon Q naught. The intensity of electric field is always equals to the force experienced by the test charge. F is equals to Q naught into E. ठीक है, ये बेसिक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का. अब हमको आपको ये जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं. अब हमें आपको क्या जानना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. क्या जानना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम आप बात करें तो ये हाइपोथेटिकल है. क्या है, हाइपोथेटिकल. हाइपोथेटिकल का मतलब है कि ये विजिबल नहीं है, इनको हम आप देख नहीं सकते हैं. तो डेफिनेशन क्या बनी, वह हाइपोथेटिकल फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वह हाइपोथेटिकल फील्ड लाइंस हैं जो किसी भी मीडियम में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बतलाती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वह हाइपोथेटिकल फील्ड लाइंस हैं जो किसी भी मीडियम में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बतलाती हैं. अब इसको हम आप कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी लैंग्वेज में, स्टेटमेंट जो लिखने वाला है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द हाइपोथेटिकल फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द hypothetical field lines which gives the intensity of electric field at any point in any medium. एक बार फिर से सुन लेते हैं. Electric field lines are hypothetical field lines which gives the intensity of electric field at any point in any medium. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कंटिन्यूअस कर्व है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक कंटिन्यूअस कर्व है, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होती हैं. क्यों, इस पर हम आप आगे चर्चा करेंगे. तो देखिए आज हमने आपने जो डिस्कस किया वो क्या क्या है. सबसे पहले हमने आपने डिस्कस किया कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. फिर हमने आपने डिस्कस किया कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस कैसे निकालते हैं. ठीक है, फिर हमने आपने डिस्कस किया कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है. हमने आपने क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये भी डिस्कस किया कि अगर कोई टेस्ट चार्ज इस फील्ड के अंदर आना चाहेगा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा. ठीक है, फिर हमने आपने सुना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आज हमने आपने सिर्फ डेफिनेशंस डिस्कस की है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से एक बार डेफिनेशन सुन लेते हैं. द एरिया अराउंड द चार्ज विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड. किसी चार्ज के चारों तरफ का वह एरिया जिसमें उसका प्रभाव हो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे. अगर कोई टेस्ट चार्ज इस फील्ड के अंदर एंट्री करना चाहेगा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, Q नॉट इंटू E. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वह हाइपोथेटिकल फील्ड लाइंस हैं जो किसी भी मीडियम में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बतलाती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर हाइपोथेटिकल फील्ड लाइंस विच गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन एनी मीडियम. ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस सेकंड वीडियो में हमने आपने जो भी डिस्कस किया वो आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा.
अगर नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो आप करेंगे ही, और अगर आप इसको लाइक करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको शेयर भी करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं और उनको भी अवेयर करें कि अच्छी चीज़ें कैसे मिलती हैं। ठीक है, और जब लाइक करेंगे शेयर करेंगे तो बेल आइकन तो आप प्रेस कर ही देंगे। थैंक यू।